With 25 plus years of banking technology expertise and deployments across cooperative banks, NBFCs, and financial institutions, Trust Bank CBAs is built for reliability, security, and scale. In today's fast-changing financial world, banks can't afford slow systems, manual processes, or fragmented technology. Customers expect faster service. Regulators demand stronger compliance, and management needs real-time visibility across every branch and channel. That's where Trust Bank CBAs comes in, a next-generation core banking platform built to power the digital-first banking experience. From customer onboarding to deposits, loans, payments, compliance, reconciliations, and digital channels, Trust Bank CBAs brings your entire banking ecosystem together in one unified platform. Every transaction, every customer, every branch, connected, seamless, secure. With configurable workflows, automated reporting, real-time dashboards, and end-to-end audit trails, your teams work faster, with fewer errors, and complete visibility. Management gets the insights they need to make faster decisions and launch new products without technical bottlenecks. Operations teams enjoy simplified processes, reduced workload, and standardized compliance across all branches. And your customers get a smoother, modern, digital-first experience online, on mobile, and at the branch. Transform the way your bank operates. Accelerate growth. Deliver superior customer experience. Trust Bank CBAs. The power behind truly digital banking. I am Ranjit on behalf of Trust Fintech Limited. I welcome you all to today's webinar on Trust Bank CBS core banking software. For today's session, we are glad to have Mr. Nitin Paliwal sir and Mr. Mahendra Patne sir with us. Mr. Nitin sir is a General Marketing Manager and Mr. Mahendra sir is a AVP Sales at Trust Fintech Limited. They will be guiding us through today's session. Thank you all. Okay. Yeah, so good afternoon, everyone. Myself, Nitin Paliwal, along with me, my colleague Mahendra Patne. So today's we welcome you all in this webinar for Trust Bank CBS. Trust Bank CBS is basically a complete core banking application. Ranjit, shall we conduct this webinar on Hindi or English? What do you prefer? Sir, we can conduct in Hindi, sir. हिंदी अच्छा चलेगा ठीक है I hope कि screen is visible to all of you. Yes sir, screen is visible. Right. So once again, hello everyone, good afternoon. मैं नितिन पालीवाल, मेरे साथ में मेरे कलीग है महेंद्र पाटने. आज का जो हमारा सेशन है, वेबिनार सेशन, जो सब्जेक्ट है, दैट इज आवर मेन प्रोडक्ट, आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट ट्रस्ट बैंक सीबीएस, अ कंप्लीट कोर बैंकिंग सोल्यूशन. एक ऐसा सीबीएस सोल्यूशन या कोर बैंकिंग एप्लीकेशन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें कि ऑल टाइप ऑफ बीएफएसआई सेगमेंट, फिर वो चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो, या एम्प्लॉय बैंक हो, ऑल टाइप ऑफ बीएफएसआई सेगमेंट को जो है वो सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट बड़े इजीली हो सकता है. सो सबसे पहले व्हाट आर द मेन फीचर्स, यूनिक फीचर्स क्या है, क्योंकि मार्केट में अदर भी सीबीएस सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बट देन व्हाट आर द मेन फीचर्स और द यूनिक फीचर्स जो इस प्रोडक्ट को बाकी मार्केट के प्रोडक्ट से डिफर करता है. तो सबसे पहला तो प्रोडक्ट इज वेरी लाइट वेट, बिकॉज सीबीएस इम्प्लीमेंटेशन इज मेनली रिक्वायर्ड द ह्यूज एंड द हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर. आज जब हम कोर बैंकिंग एप्लीकेशन इंप्लीमेंट इंस्टॉल करने की बात करें अगर अपने एंड पे, तो हमको एक हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, और जिसमें कि सबसे पहले तो सर्वर साइड एंड सेकेंडली कनेक्टिविटी. सो ये चीज को ध्यान में रखते हुए, टू हाउ टू मिनिमाइज दैट कॉस्ट, तो वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वी डिजाइन द प्रोडक्ट कंप्लीटली. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, एंड सेकेंडली very lighter in weight,
जैसे कि आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन, आई हैव मेंशन कि लाइक जस्ट विद द 256 kbps ऑफ द बैंडविड्थ यू कैन रन योर रिमोट ब्रांच आल्सो विद 5 concurrent यूजर। तो इतना लाइट वेट प्रोडक्ट है कि कॉन्करेंट 5 यूजर्स तक के आपके बेसिक बैंकिंग किसी भी रिमोट लोकेशन से जस्ट 256 kbps बैंडविड्थ पे भी कनेक्ट हो सकती है सर्वर पे। आज की तारीख में हालांकि कनेक्टिविटी इज नॉट अ इशू, बट स्टिल इट्स अ वेरी लाइटर वेट, दैट इज अ वन थिंग। सेकेंड थिंग, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन फैक्टर अभी आरबीआई भी बोलता है कि आपका एप्लीकेशन, आपकी सिस्टम जो है वो मिनिमम टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन के साथ में होना चाहिए। और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में वी हैव अ मल्टीपल चॉइस, फिर वो चाहे ओटीपी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर वो चाहे बायोमेट्रिक हो सकता है एंड सॉफ्ट टोकन हो सकता है, या इवन वी हैव अवर ओन क्यूआर बेस्ड लॉगिन ऑल्सो। तो आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहे एज ए एडिशनल ऑथेंटिकेशन फैक्टर टू सिक्योर योर लॉगिन प्रोसेस, उसके लिए मल्टीपल चॉइस है प्रोडक्ट में। आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हो, ओटीपी, बायोमेट्रिक या क्यूआर कोड, राइट। इसमें से बायोमेट्रिक और क्यूआर कोड मैं कहूंगा इज मोर डायनामिक एंड मोर इफेक्टिव द एज कंपेयर, एंड इवन ओटीपी आल्सो, बट ओटीपी के केस में सम कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व हो जाती है। तो बायोमेट्रिक एंड क्यूआर कोड इज मोर फिजिबल एंड मोर डायनामिक आल्सो। इसके बाद में क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, बिकॉज प्रोडक्ट इज ब्राउजर बेस्ड और आप किसी भी ब्राउजर से, चाहे तो क्रोम पे, चाहे तो मोजिला फायरफॉक्स, चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट एज, आप किसी भी ब्राउजर पे इसको एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट एंड से। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम कोर बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और डाउन टू द ईयर हमारा डेटा जो है वो भी कंटिन्यूअसली जो है वो बिल्ड होते चला जाता है। सो डिपेंड कि आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, फिर कितना वॉल्यूम है। सो डाउन द ईयर आपका डेटाबेस हेवी होगा और उसके बाद में जब रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो रिपोर्ट जनरेशन में प्रॉब्लम जाती है। तो इसके लिए वी हैव अ इनबिल्ट डेटा पर्जिंग फैसिलिटी, जिसमें कि हिस्टोरिकल डेटा, और वो भी कॉन्फ़िगरेबल है कि हमको पिछले 5 साल के बाद का प्रीवियस डेटा पर्ज करना है, या 3 साल पहले का डेटा पर्ज करना है, या 4 साल पहले का पर्ज करना है। सो ऑटोमेटिकली पर्जिंग फैसिलिटी इज देयर, जिससे कि हमारे रेगुलर रिपोर्ट्स जो है, रेगुलर ट्रांजैक्शन के परफॉर्मेंस पे कहीं इंपैक्ट नहीं आता है। एंड हिस्टोरिकल डेटा जब भी हम रिपोर्ट निकालने जाए तो वी गेट द कंप्लीट हिस्टोरिकल डेटा आल्सो। देन होस्ट टू होस्ट इंटीग्रेशन, वैसे भी डिजिटाइजेशन बहुत, आई मीन इंडिया इज फार अहेड इन अ डिजिटाइजेशन। सो ऑल टाइप ऑफ डिजिटल चैनल्स इज कंप्लीटली होस्ट टू होस्ट इंटीग्रेशन दैट वी प्रोवाइड। या फिर उसका आपका डे एंड और डे बिगिन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट सपोर्ट your transaction date as well as the value date also, right? So completely a real time transaction will be going on 24/7, and all digital channels you will get host to host integrated. Then again I'm saying it's a end to end solution, ये completely end to end solution की तरह हम offer कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि just एक retail banking and accounting, बल्कि entire all functionality you will get from the single from our end। फिर वो चाहे आपके रिटेल ब्रांच रिलेटेड एक्टिविटी हो, हेड ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटी हो, बैक ऑफिस हो, या फिर आपका डिजिटल बैंकिंग रिलेटेड कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म अंडर द ट्रस्ट बैंक सीबीएस सोल्यूशन। पूरी तरीके से प्रोडक्ट जो है वो कॉन्फ़िगरेबल है, पैरामीटराइज्ड है। आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो, प्रोडक्ट क्रिएशंस हो, चार्जेस क्रिएशंस हो, देन बैंक एंड ब्रांच लेवल के जो रेगुलर ट्रांजैक्शन रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, सब कुछ बैंक की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्फ़िगर सिस्टम में कर सकते हैं। वंस अगेन एक बार फिर से मैं एक रिपीट करूंगा पॉइंट कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग ही इस पॉइंट से किया था कि प्रोडक्ट इज वेरी लाइट वेट एंड वेरी गिविंग यू द गुड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को हमने एक्चुअली टेस्ट किया है विथ अवर वन ऑफ द इंस्टॉलेशन, जहां पे कि 300 ब्रांच की बैंक थी विथ ऑल डिजिटल चैनल्स। सभी डिजिटल चैनल्स उनके यहाँ पे लाइव थे, एंड देन all 300 branches on an average 1500 to 2000 users, concurrent users के तरफ से constant different types of
ट्रांजैक्शंस जो है वो हिट करके, और इसको हमने टेस्ट किया था इंटेल लेवल के सर्वर प्लेटफॉर्म पे। सो वी गॉट 300, यानी आइडियली हमको एक सर्टेन मोमेंट पे 300 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड तक का बेस्ट परफॉर्मेंस भी हमारे एप्लीकेशन पे मिला है, जो कि इंटेल प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। दैट मीन्स वेरी ऑप्टिमम सर्वर। और सेकेंड थिंग, बैंकिंग इंडस्ट्री में आज ऑन एन एवरेज अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ टीपीएस, तो 200 इज अ वेरी आइडियल मार्क, कि 200 TPS is a very ideal on an average, but whereas certain level we got up to 300 transaction per second also. So right from 100 to 200 is a gradual जो कि हमको हमेशा से मिला हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने एक्चुअल टेस्टिंग जो है वो सेम सर्वर पे, जैसा मैंने कहा, 2000 यूजर्स का एक डमी सिनेरियो क्रिएट करके इसको एक्चुअल टेस्ट करके, एंड देन वी गॉट दैट परफॉर्मेंस। इसके अलावा कुछ आज हम डिफरेंट नेचर ऑफ, देखिए, 1-to-1 ट्रांजैक्शन भी करते हैं, 1-to-many ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। 1-to-many ट्रांजैक्शन करते समय हमको बल्क ट्रांजैक्शंस भी करना पड़ता है, कहीं पे बैच क्रिएट करके करते हैं, कहीं पे फाइल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। सो डिफरेंट नेचर्स ऑफ आरटीजीएस, एनईएफटी हो, डीबीटीएल हो, जिसमें कि 1-to-many मल्टीपल क्रेडिट या डेबिट साइड्स की होती है, या बैच में भी 20,000 to 25,000 तक के जो बैच है, इसको भी जब हमने प्रोसेस, इसकी भी परफॉर्मेंस स्पीड जब हमने चेक की, सो वी गॉट अप्रोक्सीमेटली 4 minutes ऑफ टाइम सिस्टम हैज प्रोसेस सच हेवी बैच ट्रांजैक्शन आल्सो, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है फिर आपका सेंट्रलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जब भी आप मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले तो आप सेंट्रलाइज पूरे ब्रांचेस का हेड ऑफिस में बैठ के सेंट्रलाइज आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर ऑल द ब्रांच, फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इन वन स्ट्रोक, या फिर आपकी चॉइस है कि आप ब्रांच वाइज या विद इन ब्रांच ऑल्सो प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। बट नोबडी प्रिफर, सभी प्रिफर करेंगे कि सेंट्रलाइज फैसिलिटी है तो वन टाइम भी हम इसको सेंट्रली करें। तो इवन इसमें भी हम लोगों ने 5 million इन ऑलमोस्ट 50 lakhs अकाउंट्स ट्रांजैक्शन, सेविंग डिपॉजिट के ट्रांजैक्शंस अकाउंट थे जिनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमको प्रोसेस करना था, तो उसके भी हमने इवन साइजेस, आई मीन टाइमिंग जो है वो भी नोट की है। एंड डे एंड प्रोसेस, ये भी एक सबसे बड़ा हेडेक होता है इन जनरल। तो आज 300 ब्रांच की डे एंड प्रोसेस हार्डली 30 to 45 minutes ऑफ टाइम विल गेट कंप्लीटेड। तो ये कुछ ऐसे बेंचमार्क्स हैं परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक्चुअली टेस्ट करके वन ऑफ द रिनाउंड कंसल्टेंट के मॉनिटरिंग में हम लोगों ने ये टेस्ट और फैक्ट्स जो है वो ट्रू किए हुए हैं। नाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन एंड इंटरफेसिंग, तो आज के समय में जैसे कहें कि इंडिया में डिजिटाइजेशन बहुत जोरों पे है। सो प्रोडक्ट इज cover with all kind of digitizations. For example, like typically email और SMS, ये तो बहुत ही typical हर जगह होता है। बाकी फिर जो services है like RTS, NEFT और even other payment services, वो सारा भी integration है। But apart from this, multiple कियोस्क में आपका पासबुक प्रिंटिंग भी हो सकता है, कैश डिपॉजिट कियोस्क भी हो सकता है, वो भी वी हैड डिड, उसके भी एपीआई अडेप्टर के साथ में रेडी है। तो एनी कियोस्क यू कैन, आप इंस्टॉल कीजिए, वी कैन इंटीग्रेट इट वेरी क्विकली। एनी स्विच, एटीएम के जितने भी स्विच प्रोवाइडर है, वी हैव ऑल द स्विच, आई मीन कंपैटिबल स्विच अडेप्टर फॉर ऑल एटीएम स्विचेस, फिर कोई भी आपका एटीएम स्विच रहे। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर कस्टमर, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर योर फील्ड एजेंट, ये भी फैसिलिटी है। और इसके अलावा रिसेंटली हम लोगों ने एक और चीज की है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग। आज जब डिजिटाइजेशन इतना ज्यादा है, तो आप भी एक चीज देखेंगे कि मैक्सिमम चीजें लोग जो है वो वर्चुअल चाहते हैं। कस्टमर को भी वर्चुअल जितनी ज्यादा सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज जितनी ज्यादा अवेल हम करके दे सकें, लाइक कस्टमर विल, आई मीन बिकॉज वो सर्विसेज मार्केट में आज के समय में अवेलेबल है, एंड कस्टमर का प्रेफरेंस भी बहुत ज्यादा डिजिटल सर्विस के तरफ हो रहा है। तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग की एक्टिविटी जो है, जो कि पहले ब्रांच लेवल पे हुआ करती थी, जब किसी को भी नया अकाउंट ओपन करना है तो वो ब्रांच में विजिट करता था और ब्रांच में आके फॉर्म कलेक्ट करके सारी डिटेल्स फिल करके और मैन्युअली सबमिट करता था, और इसमें इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी। ये पहले समय ट्रेडिशनली ये मेथड होती थी, लेकिन आज कस्टमर ऑनबोर्डिंग हम मोबाइल एप्लीकेशन से तो दे ही रहे हैं,
आप अपने एजेंट्स के थ्रू, जिसको हम डोर स्टेप बैंकिंग बोल सकते हैं, उनके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, सेल्फ कस्टमर ऑनबोर्डिंग का वेब एप्लीकेशन ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग, जिसमें कि कस्टमर खुद होके, चाहे वो उस समय ऑफिस में बैठा हो, घर पे बैठा हो, पूरी की पूरी अपनी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विथ ई केवाईसी एंड इवन योर वीडियो केवाईसी, ये सारा का सारा जो है वो वेब एप्लीकेशन के थ्रू पूरा का पूरा ये मैनेज कर सकता है। एंड देन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में सबसे पहले जैसे मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बता दूं कि इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो आज के जो हम लोग देखते हैं, लाइक नॉर्मली जो प्राइवेट बैंक्स है या इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, तो द वे एंड द टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज दैट दे आर ऑफरिंग, दे आर प्रोवाइडिंग, वो सारी चीजें हम लोगों ने भी अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पे जो है वो लेकर आए हैं। फिर वो चाहे लाइक उसमें रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग, दोनों के ही पर्सपेक्टिव से, दोनों ही के ही यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप यूजर्स के राइट्स एंड इवन मल्टीपल यूजर्स देयर राइट्स, एवरीथिंग यू कैन कॉन्फ़िगर, आप इसमें सभी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आप लॉगिन पॉलिसी देखेंगे, जो है उसकी स्टैंडर्ड लॉगिन पॉलिसी प्रोसेस है। इसके बाद में जैसे लॉगिन करता है इंटरनेट बैंकिंग पे, तो कस्टमर विल गेट एवरीथिंग ऑन अ सिंगल पेज। आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन करते बराबर उसको क्विक लिंक्स, जो कि क्विकली होने वाली जो एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल लाइक अकाउंट समरी हो गया, डिटेल स्टेटमेंट हो गया, मिनी स्टेटमेंट हो गया, या बैलेंस इंक्वायरी हो गया, ये कुछ ऐसे क्विक एक्शंस होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली लगते हैं। तो हमने वो सारी क्विक लिंक्स में भी अवेलेबल कर दिया। तो क्विक लिंक्स पे अगर क्लिक किया तो डायरेक्टली मेनू के थ्रू नहीं जाना पड़ता, अदरवाइज फुल फ्लेज मेनू इज अवेलेबल ओवर हियर। और जैसे ही लॉगिन करता है, कस्टमर विल गेट अ स्टैंडर्डाइज कंप्लीट डैशबोर्ड। मतलब एक कस्टमर अगर उसके मल्टीपल लाइक अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट्स भी है, लोन अकाउंट्स भी है, आपने कार्ड सर्विसेज भी उसको दी हुई है, सो एवरीथिंग जो है, एवरीथिंग ही इज गेटिंग ऑन द सिंगल स्क्रीन, एक ही सिंगल डैशबोर्ड पे उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और अगर आप मेनू को रेफर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि लाइक अकाउंट डिटेल्स में जाएगा, तो फिर वहां पे भी उसको डिटेल्स लाइक स्टेटमेंट जनरेशन फ्रॉम डेट टू डेट, मिनी स्टेटमेंट, लेजर जनरेशन, टर्म डिपॉजिट एक्टिविटी, लोन्स रिलेटेड एक्टिविटी, फंड ट्रांसफर में भी मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट, आरटीजीएस, एनईएफटी, राइट। उसके बाद में मल्टी यूटिलिटी पेमेंट्स, बिल पेमेंट्स हो गया, कार्ड सर्विसेज हो गया, देन उसके कंप्लेंट्स हो गया, एवरीथिंग ही कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट बैंकिंग। बहुत ही क्विकली मैं ज्यादा इसमें भी समय नहीं लूंगा, बहुत मेन हाईलाइटेड फंक्शनल फीचर्स इंटरनेट बैंकिंग के दिखा दूंगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं अकाउंट्स में आता हूँ, अकाउंट डिटेल्स में, और वहां पे अगर मुझे फ्रॉम डेट टू डेट मतलब सेल्फ अपना स्टेटमेंट जनरेट करना है, तो इंटरनेट बैंकिंग पे जाके कस्टमर जो है वो फ्रॉम डेट टू डेट डाल के, मतलब खुद का पीरियड खुद सिलेक्ट करके और स्टेटमेंट जनरेट करके इसको एक्सपोर्ट इन पीडीएफ या एक्सेल में भी कर सकता है, राइट। देन इसके बाद में जैसा मैंने कहा कि लाइक फंड ट्रांसफर, सो फंड ट्रांसफर विद इन बैंक भी हो सकता है, फंड ट्रांसफर आईएमपीएस सर्विसेज, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, सो ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज चैनल्स आर अवेलेबल। किसी भी सर्विस चैनल के थ्रू जो है वो पेमेंट इनिशिएट कर सकता है फंड ट्रांसफर की। इसके बाद में यूटिलिटी पेमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे, ऑल यूटिलिटी पेमेंट बीबीपीएस के साथ में इंटीग्रेट करके ऑल यूटिलिटी पेमेंट्स विल बी गेट मैनेज। देन कार्ड मैनेजमेंट, अगर हम डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं तो पूरा कार्ड के भी अपने डिटेल्स जो है वो सारे डिटेल्स वो यहाँ पे चेक कर सकता है। एंड कस्टमर के खुद के जो लाइक कंप्लेंट्स है, तो एनी टाइम ही कैन रेज द कंप्लेंट आल्सो, ही कैन इवन चेक द स्टेटस आल्सो। तो दिस इज द वे लाइक कंप्लीट एक इंटरनेट बैंकिंग जो है दैट वी कैन ऑफर along with our main solution। देन मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाते हैं, तो मोबाइल ऐप में भी कस्टमर लाइक जो आपका एंड कस्टमर है उसके लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन फॉर योर एजेंट्स, आपके फील्ड ऑफिसर, एजेंट या कलेक्शन एजेंट, हम जो भी बोल रहे हैं उनके लिए भी है, राइट। सभी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी हैव द मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे नंबर वन हम लेते हैं कस्टमर, सो सबसे पहले एंड कस्टमर के लिए जितना डिजिटाइजेशन हो रहा है, आप भी जानते हैं कि इतने इस चैनल्स को उतना ही ज्यादा सिक्योर, बिकॉज अल्टीमेटली मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट्स भी इनिशिएट करता है कस्टमर। सो सिंस कस्टमर इज हैंडलिंग, तो सिक्योरिटी लेवल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यस, कंप्लीट जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री गाइड, आज की जो बैंकिंग की गाइडलाइन है, आरबीआई की जो सिक्योरिटी चेक्स है, वो सारे के सारे हमने इसमें मोबाइल एप्लीकेशन में फॉलो किए हैं। जैसे कि डिवाइस लॉक के बगैर मोबाइल एप्लीकेशन जो है
वो रन नहीं होता है। सेकेंडली लॉगिन पिन जो है वो लॉगिन पिन एंड ट्रांजैक्शन पिन सेपरेटली डिफाइन करना है। लॉगिन पिन की फ्रीक्वेंसी चेंज करने की भी दी है। और सेकेंडली लॉगिन पिन और ट्रांजैक्शन पिन डालते समय जो वर्चुअल कीबोर्ड आएगा वो कीबोर्ड भी रैंडमली कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो उसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है। इसके अलावा अगर कोई रिमोट डिवाइस एक्सेस सॉफ्टवेयर जैसे कि रिमोट मीटिंग लिंक इस तरीके का गूगल मीट हो गया या एनी काइंड ऑफ ऐसा अगर सेशन एक्टिव है मान लीजिए मोबाइल पे, देन ऑल्सो सिस्टम वोंट अलाउ टू एक्टिवेट द मोबाइल एप्लीकेशन। तब वो मोबाइल एप्लीकेशन खुद होके नहीं एक्टिवेट होता, कट कॉपी पेस्ट करने नहीं देता, सो पासवर्ड या ट्रांजैक्शन पिन आप पेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी फीचर्स हैं, दैट ऑल फीचर्स आपको यहाँ पे इनबिल्ट जो है वो फीचर मिलेगा। इस तरीके से इसका यूआई रहेगा कस्टमर के लिए। कस्टमर अपना खुद का फोटोग्राफ, लास्ट उसने कब लॉगिन किया, राइट, ये सारी डिटेल्स। और ऊपर में हमने रिजर्व किया है बैनर पेज बैंक्स के लिए, सो दैट बैंक्स कैन आल्सो रेगुलरली पब्लिश देयर एडवर्टीजमेंट। कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो भी आप उसके ऊपर में पब्लिश कर सकते हैं। और जो मेन फीचर्स है लाइक अकाउंट्स, देन मिनी स्टेटमेंट, यूटिलिटी पेमेंट्स, फंड ट्रांसफर, बेनिफिशियरी, ये सारी चीजें जो है दैट यू विल गेट इन अ आइकॉनिक फॉर्म। जो भी ऑप्शन पे कस्टमर को प्रोसीड करना है, ऑपरेशन करना है, ठीक है, बहुत ही इजीली वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेल स्क्रीन रखा है कि लाइक अकाउंट्स पे अगर क्लिक करता है तो देन दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट ही विल गेट टू परफॉर्म अंडर द अकाउंट ऑप्शन। वो अकाउंट डिटेल्स ले सकता है, बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है। नाउ कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो उसको अकाउंट नंबर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, और जैसे ही अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेगा इमीडिएटली अकाउंट डिटेल्स सामने आ जाएगी। सिमिलरली एम पासबुक जैसा हमने इंटरनेट बैंकिंग में भी देखा, सेल्फ मिनी स्टेटमेंट जनरेशन दिया था, वैसे ही हमने इवन मोबाइल बैंकिंग में भी, मोबाइल एप्लीकेशन में भी सेल्फ स्टेटमेंट जनरेशन का भी प्रोविजन दिया है। सो फ्रॉम डेट टू डेट कस्टमर अपने हिसाब से डालेगा, और जैसे ही स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है पीडीएफ, एक्सेल, मल्टीपल फॉर्मेट में वो वहीं के वहीं पे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। देन एनईएफटी, आरटीजीएस जो फंड ट्रांसफर एक्टिविटी है वो भी वो मैनेज कर सकता है। कार्ड्स रिलेटेड, मतलब इंटरनेट बैंकिंग में जितने फीचर्स देखे हैं लगभग उसमें मैक्सिमम फीचर्स जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन में भी कस्टमर को एज इट इज मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कार्ड मैनेजमेंट है तो कार्ड डिटेल्स भी आ गए, यूटिलिटी पेमेंट्स भी आ गई इसमें। देन नियरेस्ट कुछ सर्विसेज जो है, फॉर एग्जांपल चेकबुक रिक्वेस्ट डालनी है, राइट, या स्टॉप चेक पेमेंट रिक्वेस्ट करना है, वो भी वो कर सकता है, मैनेज कर सकता है, राइट। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट लाइक फॉर्म 15G इस तरीके के रिक्वेस्ट भी जो है, सर्विस रिक्वेस्ट भी डाल सकता है, कंप्लेंट्स भी इसमें से कर सकता है, नियरेस्ट ब्रांच, नियरेस्ट एटीएम, ये सब कुछ उसमें से लोकेट करके जो है वो देख सकता है। तो दिस इज अ वे लाइक पूरी की पूरी लाइक एंड कस्टमर की मोबाइल एप्लीकेशन है। सिमिलरली जैसे मैंने कहा फील्ड एजेंट के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें कि कलेक्शन, रिसीव पेमेंट्स, यानी आपका डेली कलेक्शंस भी हो सकता है, अकाउंट ओपनिंग, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ये सारी की सारी प्रोसेस भी जो है ये सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू फॉर एजेंसी बैंकिंग जो कि आपके फील्ड ऑफिसर के लिए हो सकता है, वो भी हो सकता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग हर बैंकिंग सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं, तो नेक्स्ट जो मोबाइल एप्लीकेशन आप देख रहे हैं फील्ड ऑफिसर, दैट इज फॉर द माइक्रो फाइनेंस टिपिकली। तो इन शॉर्ट लाइक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ बीएफएसआई ऑर्गेनाइजेशन। और काफी हद तक जो है मोबाइल एप्लीकेशन का कलर थीम, ये बैंक अपनी जो उनकी स्टैंडर्ड कलर थीम होगी उसमें उसके हिसाब से भी उसको कस्टमाइज, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन जिसको हम कहेंगे वो भी प्रोडक्ट में कर सकता है। सो दीज आर द इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। देन अभी व्हाट्सएप बैंकिंग की भी काफी बात होती है। सो यस, वी आर रेडी एंड कंप्लीटली कस्टमाइज योर चैटबॉट फॉर व्हाट्सएप ऑल्सो। आपको वैसे तो टिपिकल है बैंक में, लाइक हम व्हाट्सएप बैंकिंग में क्या क्या दे सकते हैं, राइट। सो लाइक अभी रिसेंटली लाइक एज ए हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, नियरेस्ट ब्रांच, नियरेस्ट एटीएम, ये कुछ ऑप्शन हम लोगों ने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे कॉन्फ़िगर करके रखे हैं। लेकिन अगर कुछ यूनिक आपका भी कुछ एक आइडिया है तो विद द हेल्प ऑफ चैटबॉट कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें मेनू में ऑप्शंस भी जो है वो प्लस और माइनस कर सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि जो स्टैंडर्डिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ व्हाट्सएप बैंकिंग के अंडर में यही रहेगा, बट ये दिस इज अ वेरी टिपिकल, ये बहुत टिपिकल है बैंकिंग में, बट इसमें हम
प्लस और माइनस जो है वो कर सकते हैं, जो कि लॉजिकली डेटाबेस लेवल पे पॉसिबल हो। तो सिंपल वे है, आप जैसे ही व्हाट्सएप पे हाई करते हो, इमीडिएटली कस्टमर विल गेट द मेन मेनू, और मेन मेनू में जो भी ऑप्शन है, उसको अकाउंट बैलेंस देखना है, मिनी स्टेटमेंट देखना है, वो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा और अकॉर्डिंग टू दैट उसके स्क्रीन पे जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होते चले जाएगा व्हाट्सएप में। सो व्हाट्सएप बैंकिंग इज ऑल्सो सपोर्टिंग ऑल। इसके बाद में जो मैं बात कर रहा था वेब ऐप के बारे में, सो वेब ऐप भी हम, ये जैसे ही पीपीटी खत्म होता है, हम लोग वेब एप्लीकेशन भी जो है जो है थोड़ा सा रियल में आपको उसका भी एक लाइव जो है एकदम शॉर्ट में ओवरव्यू दिखाऊंगा। सो ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, इसके बाद में थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस, तो रियल टाइम लाइक पैन वेरीफाई, अब जब हम कस्टमर ऑनबोर्डिंग करते हैं ब्रांच लेवल पे, राइट, उस लेवल पे भी हमको लगता है ऑटोमेशन ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिटेल्स, जैसे कि पैन हो गया, आधार हो गया, लाइक, तो ये सभी के थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने किए हुए। फिर वो पैन वेरिफिकेशन हो, आधार वेरिफिकेशन हो, कंप्लीट CKYC प्रोसेस हो, जिसमें कि सरसाई के साथ में फुल इंटीग्रेशंस किया हुआ है, ऑल क्रेडिट ब्यूरो इंटीग्रेशन, बैंकों को भी रेगुलरली जो क्रेडिट ब्यूरोज को जो मंथली रिपोर्टिंग करना पड़ता है, सो उस पर्सपेक्टिव से भी, एंड इवन लाइक क्रेडिट स्कोरिंग और रिपोर्ट जनरेशन पर्सपेक्टिव से सभी क्रेडिट ब्यूरो के साथ में वी टेस्टेड द इंटीग्रेशन। जीएसटी रिलेटेड कोई भी हो, जीएसटीएन नंबर हो या अदर कोई थिंग्स आपको डाउन, जीएसटी रिलेटेड आपके आपके कमर्शियल कस्टमर्स जो है खास तौर पे, उनके बारे में अगर डिटेल्स चाहिए तो जीएसटी एपीआई भी हम लोगों ने इंटीग्रेट किए हैं, एंड एनपीसीआई के सभी सर्विस कंपोनेंट्स, फिर वो सीटीएस हो, आईएमपीएस हो, नाच, बीम, बीबीपीएस, एईपीएस, यूपीआई, रुपए, एवरी कंपोनेंट्स ऑफ एनपीसीआई हमने इंटीग्रेट किया है। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वैसे डीबीटीएल तो ऑलरेडी रनिंग में है, बट इवन कंप्लीट पीएफएमएस के अदर बेनिफिशियरीज जो स्कीम्स है, वो भी हम लोगों ने अदर एक प्रोजेक्ट में जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ, इंटीग्रेट किया हुआ है। सो ऑल स्कीम रन बाय द मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि बैंक से राउट होती है, ऐसी किसी भी स्कीम के लिए जो है वो एपीआई इंटीग्रेशन पीएफएमएस के हमारे ऑलरेडी दूसरे एक प्रोजेक्ट में टेस्ट किए हुए हैं। सीबीएस में डीबीटीएल इज अ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर, तो वो ऑलरेडी किया हुआ। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि एटीएम कोई भी स्विच प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, वेदर इट्स आपका जो नोन है टिपिकली, फॉर एग्जांपल लाइक यूरोनेट हो गया, हिताची हो गया, मैक्सिमस हो गया, फिनाकस, सर्वत्रा, तो ये सभी के साथ में जो है सभी स्विचेस के साथ में हम लोगों ने इंटीग्रेशंस किए हैं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस की जहां तक बात है, सो वी डिड लॉट ऑफ इंटीग्रेशन, अब तक इतने सारे इंटीग्रेशंस किए हैं कि इंटीग्रेशन इज नॉट अ चैलेंज फॉर अस। और किसी भी जहां पर भी रियल टाइम ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है, तो थ्रू इंटीग्रेशन वी आर ऑलवेज रेडी टू डू इट वेरी फास्टली, बिकॉज उसके लिए हम लोगों ने एक एडाप्टर डिजाइन कर लिया, तो क्विक इंटीग्रेशन प्रोसेस भी बहुत ही क्विकली होती है। जैसा मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूं कि एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, तो ऐसा कोई फंक्शनल मॉड्यूल नहीं है जो आपको प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, या जिसके लिए आपको किसी और थर्ड पार्टी का सॉल्यूशन या एप्लीकेशन सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नो, कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो आपकी खुद की बैंक की अपनी सेल्फ, अपने खुद के यूजर्स के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के केस में इंटरनेट बैंकिंग की के लिए, मतलब बैंक आपके कस्टमर्स के लिए, हर एक की लॉगिन पॉलिसी का पूरा पैरामीटराइजेशन आप खुद कर सकते हो कि उसका यूजर आईडी कैसा होना चाहिए, कितना लेंथ का होना चाहिए, पासवर्ड कितने लेंथ का होना चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए उसमें, अपर, लोअर, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक, सब कुछ, कितने अटेम्प्ट्स करने के बाद में लॉक हो जाना चाहिए, कितने दिनों बाद में पासवर्ड चेंज होना चाहिए, ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेबल पॉलिसी है। आप जैसा डिजाइन करना चाहो वैसा बना सकते हो। देन कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, यूजर मैनेजमेंट में भी हमने बेसिक एचआर भी इसमें दिया हुआ है, ताकि पहले आप एम्प्लॉय बोल के उसको आइडेंटिफाई करोगे, हर यूजर को एम्प्लॉय बोल के उसको रजिस्टर्ड करोगे, एंड देन ओनली फिर आप उसका यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हो। बाद में फिर उसके रोल्स, यूजर के राइट्स, रोल के अकॉर्डिंग राइट्स, देन स्पेसिफिक यूजर वाइज राइट्स, ये सब कुछ आप सिस्टम में वेरी इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर कुछ बैंक लेवल के स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, क्योंकि एक और दूसरे बैंकों की प्रैक्टिसेस में भी फर्क होती है, तो हमने वो सारा कॉन्फ़िगरेबल बनाया है कि आप बैंक लेवल पे भी कॉन्फ़िगर हम लोग चीजें कर सकते हैं, जो कि थ्रू आउट बैंक में
पैरामीटर होता है, और ब्रांच लेवल के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ब्रांच लेवल पे जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए भी सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। देन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है टाइट, तो कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट सेंट्रलाइज आपको कॉन्फ़िगर करने को मिलता है। यू कैन कॉन्फ़िगर द चार्जेस। फिर हम ब्रांच रिटेल बैंकिंग में आते हैं, तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग, केवाईसी प्रोसेस, अकाउंट ओपनिंग, टेलर आपके कैश काउंटर के लिए अलग से मॉड्यूल, देन योर सीटीएस सिस्टम, आरटीजीएस, एनईएफटी, स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, दोनों टाइप से इंस्ट्रक्शंस की फैसिलिटी है। चेकबुक मैनेजमेंट है, लॉकर मैनेजमेंट है, कंप्लीट एनपीए मैनेजमेंट है। इसके बाद में आपके फिर जो अदर सर्विसेज में एपीबीएस, डीबीटीएल, पीएम जेजेवाईवाई, देन आपका पीएफएमएस, एईपी, पीएफएमएस फॉर द डीबीटीएल, देन आपका एईपीएस हो गया, नैच हो गया, देन मैंडेट मैनेजमेंट। ये सारे के सारे फीचर्स आपके टिपिकली रिटेल बैंकिंग के हो जाते हैं। फिर हेड ऑफिस में आते हैं तो आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, रिकंसिलेशन में भी वी हैव बोथ रिकंसिलेशन। पहला, आपका खुद का करंट अकाउंट जिस पब्लिक सेक्टर बैंक या अदर कमर्शियल बैंक में जिसमें भी है, जितने भी करंट अकाउंट्स है उनके ट्रांजैक्शन को रिकंसिलेशन आपके बैंक बुक के साथ, दैट इज वन थिंग, वो भी सिस्टम में रिकंसिलेशन मॉड्यूल है, जो कि सिस्टम आपको मैक्सिमम सपोर्ट करता है ऑटो रिकंसिलेशन, जिसके लिए सिर्फ हमको जितने भी हमारे करंट अकाउंट है उनके सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्मेट जो है वो सिस्टम में एक बार कॉन्फ़िगर करना है, सो दैट जैसे ही हमको एक्सेल या सीएसवी जो भी फॉर्मेट में स्टेटमेंट मिलता है वो हम लोग रिकंसाइल जो है वो ऑटो कर सके। और दूसरा है मल्टी जो आपके डिजिटल चैनल्स है, फिर आपका आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया, ई कॉमर्स के हो गया, एटीएम हो गया, ये सभी डिजिटल चैनल्स का रिकंसिलेशन टूल भी दैट आल्सो वी प्रोवाइड। तो रिकंसिलेशन में दोनों है, बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलेशन एंड योर डिजिटल चैनल रिकंसिलेशन। देन टैक्स कंप्लायंसेस, हम एक और चीज बहुत ही आई मीन कॉन्फिडेंस के साथ में ये भी कहते हैं कि हम लोग सिर्फ बैंकिंग फंक्शनैलिटी ही एंड टू एंड नहीं प्रोवाइड कर रहे, बल्कि आपका जो रिपोर्टिंग पार्ट है कंप्लायंस से रिलेटेड स्पेसिफिकली, फिर वो आरबीआई रिपोर्टिंग हो चाहे फिर वो अदर कंप्लायंस रिपोर्ट जैसे कि जीएसटी और टीडीएस हो गया, तो ये सभी सिस्टम से आपको मैक्सिमम 99% सिस्टम जनरेटेड मिलेगा। और कुछ स्पेसिफिक लाइक जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न फाइलिंग तक का प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, बिकॉज वी आर जीएसपी ऑल्सो। तो आपको डायरेक्ट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग ही सीधा यहाँ से होगा, आपको डेटा प्रिपरेशन और कलेक्शन एंड शेयरिंग ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। आरबीआई रिपोर्टिंग की जहां तक मैं बात करूं तो आरबीआई रिपोर्टिंग यू विल गेट एवरीथिंग, जैसे कि आरबीआई के जो टिपिकली जो रिपोर्ट्स हैं वो सभी हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे मेनू प्रोडक्ट में। इसके बाद में इनकम टैक्स रिपोर्टिंग, एंड मेन थिंग इज जो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से है एमआईएस रिपोर्टिंग, वो भी हम लोग इनबिल्ट ग्राफिकल रिपोर्ट्स डिजाइनर के थ्रू जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर बैक ऑफिस में आ जाते हैं तो फिर आपका इन्वेंट्री, फिक्स असेट, परचेस प्रोसेस, यानी रिक्विजिशन से लेके तो परचेस इनवॉइस तक का पूरी परचेस प्रोसेस, वेंडर पेमेंट, इंटरनल ऑडिट्स, ऑल स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मॉनिटरिंग, एनपीए रिकवरी प्रोसेस जिसमें कि आपका लीगल प्रोसेस जो आ जाती है, फिर वो सरफेसाई एक्ट हो या लोक अदालत हो या कोऑपरेटिव एक्ट के अकॉर्डिंग हो, वो सारा कवर अप होता है। देन विजिटर गेट पास, एचआर, पेरोल, शेयर मैनेजमेंट, व्हीकल मैनेजमेंट, ये सब कुछ बैक ऑफिस मैनेज मॉड्यूल के थ्रू आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डिजिटल साइड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एंड कस्टमर, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फील्ड एजेंट, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, ये सारा का सारा जो है वो डिजिटल चैनल्स के इसमें आपको मिलता है। नाउ जो मैं अभी रिसेंटली जैसे अभी मैंने एक बात किया था कि इन आपको इंटीग्रेटेड एमआईएस टूल ये भी हम ऑफर कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन वो टूल है ट्रस्ट एनालिटिका, जो कि आपके मेन सीबीएस से फुल्ली इंटीग्रेटेड है। और इसमें आपको जो मैनेजमेंट को या फिर सीनियर लेवल ऑफ जो बैंकर्स हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, उनको डे टू डे बेसिस पे जिस टाइप का समरी, स्टैटिस्टिकल्स, एमआईएस, ग्राफिकल लगते हैं, वो सब कुछ आपको इसी से जनरेट करके मिल जाएंगे। यानी कि नॉर्मली जो बड़े बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स और कमर्शियल बैंक,
बिजनेस इंटेलिजेंस टूल इसके लिए यूज करते हैं, जिसकी कि करोड़ों में कॉस्टिंग है, लाइसेंस कॉस्टिंग है। वेयर एज उसी का प्रोटोटाइप एक स्मॉल वर्जन हम बोल सकते हैं, जो हम लोगों ने इनबिल्ट डिजाइन करके जो है वो मेन सीबीएस के साथ में, आपके मेन डेटाबेस के साथ में इंटीग्रेट, आई मीन मेन सीबीएस के साथ में इंटीग्रेटेड दिया है, सो दैट ना ही डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट करने की जरूरत है, और आपको पूरा का पूरा एमआईएस रिपोर्टिंग जो है वो भी इसमें से पूरी तरीके से जनरेट करके मिल सकता है। तो ये कुछ मेन, आई मीन आप ये कह सकते हैं कि एक क्विक ओवरव्यू था अबाउट द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अब हम क्विकली प्रोडक्ट्स हैं, इसके स्टार्ट हम लोग एक एक करके एक एक प्रोडक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात की थी आपके लिए कि आज कस्टमर ऑनबोर्डिंग में वेब एप्लीकेशन के थ्रू सेल्फ कस्टमर ऑनबोर्डिंग की भी प्रोसेस जो है वो, उसके लिए भी एप्लीकेशन हमारे पास में, जो कि फर्दर आगे चल के सीबीएस से इंटीग्रेट भी हो जाएगा। यानी कि कस्टमर अपना फॉर्म आपके यहाँ पे जब पहली बार आई मीन लाइक अकाउंट ओपन करने आता है, और अगर उसको ये पता चलता है कि बैंक मतलब लाइक ऑनबोर्डिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली ऑनलाइन भी हो सकती है, आप जितना ज्यादा इसको लाइक पब्लिक यानी क्या कह सकते हैं लाइक प्रचार करेंगे, तो डेफिनेटली उतना ज्यादा लोगों में भी ये चीज पॉपुलर होगा, और जैसे ही पता चलेगा तो डेफिनेटली पब्लिक विल यूज द प्लेटफॉर्म ऑल्सो। और जो कि आज के तारीख में बहुत सी पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत ही प्रोमिनेंटली इसको यूज भी कर रही है। इसमें आप जैसे ही कस्टमर आपके वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट होके इस एप्लीकेशन पे आएगा, तो यहाँ पे उसको पहले तो उसको गाइडलाइन, एक बार गाइडलाइन पढ़ लिया कि उसको प्रोसेस क्या करना है। अब यहाँ पे आके वो पूरी की पूरी अपनी कस्टमर ऑनबोर्डिंग की जो प्रोसेस है, वो पूरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है वो खुद अपने एंड से, वो फिर ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के, अपने टैब से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, कहीं से भी वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज इंटरेस्टेड, आपके यहाँ पे उसको सेविंग अकाउंट ओपन करना है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो वो जो जो इंफॉर्मेशन उसको जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हम उसको वन बाय वन पूछेंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे। जैसे ईमेल आईडी है, अब ईमेल आईडी जैसा वो डालता है, ईमेल आईडी भी वेरीफाई होगा, उसका ओटीपी चला जाएगा। ये ओटीपी जो है वो कस्टमर जब कंप्लीट करेगा, जैसे यहाँ पे उसको ओटीपी जनरेट हो गया है, जैसे ही वो अपना ओटीपी डालता है तो ईमेल उसका वेरीफाई हो गया। सबसे पहले हमने ईमेल उसका वेरीफाई कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि उससे उसका आधार, ये सेल्फ कस्टमर अपने लेवल से कर रहा है, ताकि देखिए ब्रांच में आके फॉर्म कलेक्ट करके और घंटा भर वहां पे फॉर्म भरने से अच्छा है कि ऑनलाइन सब कुछ भर, मतलब जितना मैक्सिमम होगा। इससे मल्टीपल बेनिफिट है। देखिए मल्टीपल बेनिफिट ऐसा है कि एक तो एंट्री समय भी बच रहा है, एंट्री मैक्सिमम एंट्री जो हमको करनी पड़ सकती है, फॉर्म फिजिकल फॉर्म लेने के बाद में हमको करना पड़ेगा, वो सब हमको डिजिटल कस्टमर की तरफ से भर के मिल रहा है और ई केवाईसी करके मिल रहा है। अभी जैसे मैंने आधार नंबर डाला, सो इमीडिएटली आधार भी जो है वो भी वेरीफाई करके मिलेगा, उसके लिए भी ओटीपी जनरेट हो गया। ये ओटीपी आ गया है 57773। जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करता हूं, अगर ओटीपी वेरीफाई हो जाता है तो इमीडिएटली यूआईडीआई से कनेक्ट हो गया, और यूआईडीआई से कनेक्ट होके देखिए फोटोग्राफ भी उसने यूआईडीआई से ना, आधार पे जो फोटोग्राफ है और आधार पे जो बाकी डिटेल्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब कुछ उसने सेल्फ फिल कर दिया। अब मुझे ये एंट्री करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी प्रेफरेबल कोई स्पेसिफिक ब्रांच में उसका इंटरेस्ट है वो अकाउंट ओपन करने का, वो डाल देगा। और इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, आपका पैन नंबर वेरिफिकेशन। तो यहां से उसकी पैन नंबर वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ये पैन भी वेरीफाई हो गया, एंड पैन पर भी क्या नाम है वो भी मेंशन हो गया। तो आधार पैन पे दोनों जगह नाम भी उसको मैच हो रहा है, तभी सिस्टम उसको नेक्स्ट लेवल पे अलाउ करेगी। अभी बहुत सी बार होता है कि लाइक आधार में पुराना फोटो है, तो उसको लगता है कि भाई ये फोटो नहीं चाहिए, तो रियल टाइम यहाँ पे वेबकैम से वो रियल टाइम फोटो भी ले सकता है, और आगे की बाकी की जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेगा। अगर कोई भी मैंडेटरी फील्ड आप छोड़ते हो तो वो वहां पे उसको छोड़ने नहीं देगा, राइट। सो यहाँ पे
सारी डिटेल्स जो है वो डालने के बाद ही इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए सिस्टम अलाउ करेगा। तो इसमें बाकी के डिटेल्स वन बाय वन डाल के यहीं से हमने पूरा वीडियो केवाईसी भी दिया। और वीडियो केवाईसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू कंप्लीट वीडियो केवाईसी भी आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो। वीडियो केवाईसी में आपका लाइवलीनेस ऑफ द अप्लीकेंट, जो वो भी हम लोग मल्टीपल मल्टीपल फोटोग्राफ यानी अगले 10 सेकंड तक वो कंटिन्यूस जो है वो कस्टमर के जो है वो क्लिक होते चले जाते हैं फोटोग्राफ, जिसमें हम उसको गाइडेंस देते हैं कि आपको अपने चेहरे पे मूवमेंट रखनी है। तो इस तरीके से पूरा जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो पूरा फॉलो करते हुए ये पूरा कस्टमर ऑनबोर्डिंग, और एक बार आपकी कस्टमर ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गया तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिस्टम जनरेटेड उसको मिलेगा डायरेक्टली, वो प्रिंट करेगा और एक टोकन नंबर के साथ में, रेफरेंस नंबर के साथ में वो ब्रांच में आएगा। और एक विद इन अ 5 मिनट्स फाइनल एक्टिविटी जस्ट साइनिंग आइनिंग करके सबमिशन करके डॉक्यूमेंट के साथ में और रेफरेंस नंबर अपना शेयर कर देगा। तो रेफरेंस नंबर आप सीधा अपने कस्टमर ऑनबोर्डिंग में लोगे, वेरीफाई करोगे सारी डिटेल्स और इमीडिएटली अकाउंट ओपन। यानी कि अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस फिजिकल एक 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट में जो है वो क्विकली डिजिटल मोड से इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जिससे हमको एडवांटेज है पूरा डेटा भी मिल गया, ई केवाईसी वेरीफाइड डेटा मिल गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, उनकी सॉफ्ट कॉपी भी उसी की तरफ से मिल गई, और उसको हमने सिर्फ वेरीफाई करना है जब वो फिजिकल हमारे पास में आ रहा है। तो यानी आप ब्रांच में भी ये मैनुअल प्रोसेस जो चलती थी आज तक वो तो एज इट इज रहेगी रहेगी, लेकिन ये सेल्फ ऑनबोर्डिंग का भी एक कंसेप्ट जो है वो भी हम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो आप वो भी इसको एडिशनली अटैच कर सकते हैं। बाकी फिर आपके एजेंट्स के थ्रू भी कस्टमर के एंड पे जाके भी हम लोग ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। फिर एक मैंने बात बोला था एमआईएस टूल, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि इंटीग्रेटेड पूरा कंप्लीट एमआईएस सिस्टम हम लोग इसमें ऑफर कर रहे हैं। ये मल्टी सेक्शनल एमआईएस सिस्टम है जिसमें कि हर तरीके से एनालिसिस करने की प्रोविजन है। सबसे पहले तो भाई सीईओ सर होते हैं या लाइक सीएफओ सीईओ या सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर या ऑपरेशनल हेड, अब ये लोगों को नॉर्मली हेड ऑफिस में बैठ के कुछ की फिगर्स पे ही मॉनिटरिंग नॉर्मली करते हैं। तो उनके लिए स्पेशल एमआईएस का पहला सेक्शन है डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड जो है वो कुछ फिगर्स आपको रियल टाइम लेकर आ रहा है। दैट मीन्स आपके सीबीएस में हर ब्रांच में कंटिन्यूअसली आपका अभी डे एंड हुआ नहीं है, आपके डेटा एंट्री हर ब्रांच पे ट्रांजैक्शन शुरू है, तो कैश के ट्रांजैक्शन, बैंक के ट्रांजैक्शन, इनका इंपैक्ट कंटिन्यूअसली इस डैशबोर्ड पे जो है वो रिफ्लेक्ट चेंज होता रहेगा। तो ये जो आपकी हर ब्रांच की करंट कैश पोजीशन कितनी है और ओवरऑल कितनी कैश बैंक में है, इसका आपको रियल टाइम यहीं आपको पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रल एक डैशबोर्ड के में आपको कैश पोजीशन भी दिख रही है, डे एंड पोजीशन भी दिख रही है, हर ब्रांच का सीडी रेशियो, हर ब्रांच वाइज सीडी रेशियो एंड ओवरऑल बैंक का सीडी रेशियो, बैंक पोजीशन मतलब आपके करंट अकाउंट जितने हैं उनका रियल टाइम पोजीशन, प्रोबेबल एनपीए या ओवरड्यू की पोजीशन ब्रांच वाइज। अगर आपने ब्रांच पे क्लिक किया तो आपको इंटरनली अकाउंट वाइज भी डिटेल वो दे देगा वहीं के वहीं। इसके बाद में आपकी लॉकर पोजीशन, रिसिप्ट पेमेंट, आपका मंथली इनकम एक्सपेंसेस, लॉकर टोटल ब्रांच बैंक में कितने लॉकर है, कैटेगरी वाइज कितने अलॉट हो चुके हैं, कितने अनयूज्ड है, इस तरीके का पूरा आपका ये जो सेंट्रल डैशबोर्ड है वो आपको रियल टाइम कैश और बैंक पोजीशन रियल टाइम के साथ में आपको मिलेगा। इसी में आपका एसएलआर, सीआरआर की भी पोजीशन वो जो रियल टाइम दिखाएगा, लोन डिसबर्समेंट पोजीशन वीकर सेक्शन वाइज इस फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ। तो एक सीईओ सर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीनियर ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या डायरेक्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिकल डैशबोर्ड, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैश और बैंक पोजीशन रियल टाइम, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसीजन लेने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉल मनी या शॉर्ट कॉल जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एक्सेसिव कैश कहीं पे है तो आप इमीडिएटली तुरंत आपको यहीं पे रिपोर्टिंग मिलती है, आप डिसीजन ले सकते हो। कलर कोडिफिकेशन इसलिए दिया है क्योंकि आरबीआई ने हर ब्रांच का आपका जो रिटेंशन कैश रिटेंशन लिमिट डिसाइड किया है ना, उससे ज्यादा वो ब्रांच कैश नहीं होल्ड कर सकता है। तो वो लिमिट के ऊपर अगर कैश गई तो ऑटोमेटिकली आपको कलर डिफरेंट कलर में
इंडिकेट करेगा, ताकि आपके उसको भी क्विक डिसीजन जो लेना है हमको, हम वो क्विक डिसीजन भी ले सकते हैं। सो ब्रांच वाइज आपका सीडी रेशो क्या बन रहा है, कौन सी ब्रांच का सीडी रेशो अच्छा है, कौन सी ब्रांच बेटर परफॉर्म कर रही है, एंड ओवरऑल मेरा सीडी रेशो क्या है। जैसे मैंने कहा ब्रांच वाइज आपको लाइक ओवरड्यू और एनपीए की पोजीशन, ये सब कुछ आपको सेंट्रल डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप खुद होके भी आप किसी भी जीएल लेवल पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, जीएल के ग्रुप लेवल पे परफॉर्मेंस ग्राफ जनरेट कर सकते हो, जीएल लेवल पे कर सकते हो, या फिर आपके ब्रांच लेवल पे कर सकते हो। जैसे बहुत ही क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि लाइक मुझे एसेट में से सिर्फ मिड टर्म लोन का लाइक पोजीशन या ग्राफ ग्राफ पोजीशन चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए। तो ये देखिए मेरा मिड टर्म लोन का इमीडिएटली जनरेट हो गया। मुझे मिड टर्म लोन में से किसी स्पेसिफिक जीएल्स के देखने हैं, तो मैं उनमें से किसी भी स्पेसिफिक जीएल का भी इस तरीके से जनरेट कर सकता हूं। और अगर मुझे उन्हीं में से ब्रांच वाइज सभी ब्रांचों का देखना है, तो मैं सारे ब्रांचों का भी मिड टर्म लोन का जो है पोजीशन देख सकता हूं फॉर ऑल द मंथ। तो आप देखेंगे मंथ वाइज एंड ब्रांच वाइज भी आपको स्टैटिस्टिकल पोजीशन और ग्राफिकल पोजीशन मिल रही है। आप ग्राफ के डिजाइन्स भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जैसा चाहिए। ये भी एनालिटिका का, इसका हमारे एमआईएस टूल का जो है वो सेक्शन का पार्ट है। इसके बाद में कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड ग्राफ, हमको मालूम है टिपिकली लाइक इतने सालों से, आज 25 सालों से बैंकिंग इंडस्ट्री में सोल्यूशन देते आ रहे हैं, इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। तो टिपिकली मैनेजमेंट को, क्योंकि एमआईएस बनाए मैनेजमेंट के लिए है स्पेसिफिकली, तो टिपिकल जो देखते हैं मॉनिटरिंग क्या रहती है, तो लोन पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग हो गया, आपके टर्म डिपॉजिट के मैच्योरिटी की मॉनिटरिंग हो गया। तो सबसे पहले आपका लोन पोर्टफोलियो, जो टोटल लोन पोर्टफोलियो है उसका, ये टोटल लोन पोर्टफोलियो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइज सिस्टम ने जनरेट किया, क्योंकि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइज लिया। मैं चाहूं तो रिकवरी पैटर्न वाइज भी टोटल लोन पोर्टफोलियो का ले सकता था, तो मैं उस तरीके से भी जनरेट कर सकता हूँ, ब्रांच वाइज भी देख सकता हूँ। ये देखिए रिकवरी पैटर्न वाइज आ गया। पर मैं वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइज जाता हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 9% से मैंने कितना लोन बांटा है, कितना अमाउंट, कितना परसेंट, 9.49 से कितना बांटा है, 10.90 से कितना, 9.50 से कितना डिसबर्स किया है, 14%। तो ये मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बकेट्स है, और इनका पूरा स्टैटिस्टिकल पोजीशन भी मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर मुझे और ज्यादा एनालिसिस करना है कि स्पेसिफिकली 9% में कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की भी डिटेल्स आ गई। और अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करूं, तो मुझे ब्रांच वाइज का भी जो है वो भी आ जाए, और उसका भी स्टैटिस्टिकल पोजीशन जो है। और स्टैटिस्टिकल पोजीशन जब मैं ले रहा हूं, तो मेरे पास में नंबर ऑफ अकाउंट, उसका टोटल अमाउंट एंड उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से मल्टी ड्रिल डाउन जो एनालिसिस है, आपके लोन अकाउंट्स, लोन पोर्टफोलियो का एनालिसिस हो सकता है, लोन पोर्टफोलियो का ब्रांच वाइज हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइज हो सकता है, इंपॉर्टेंट आपका रिकवरी पैटर्न वाइज, एक्सपेक्टेड कि अगले 30 दिन में क्या रिकवरी आ सकती है लोन की, जो ईएमआई जिनके सबके ड्यू प्लान है, 30 से 60 दिन में, 60 से 90 दिन में, 90 से देन ओवरऑल, इस तरीके से भी वी कैन हैव द दिस ग्राफिकल पोजीशन। उसी तरीके से आपका, जैसे मैंने कहा कि मैच्योरिटी पैटर्न, मैच्योरिटी पैटर्न में अगर आप चलते हैं, तो वहां पे आपके जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, टर्म, ये एएलएम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट 0 to 14 डेज में कितने अकाउंट मेरे मैच्योर हो रहे हैं, टर्म डिपॉजिट के कितने परसेंटेज हो रहे हैं। ये सब का एनालिसिस जो है वो हमने प्री कॉन्फ़िगर्ड यहाँ पे करके रखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे 1 to 14 डेज में कितनी एफडी मैच्योर होने वाली है, 15 to 28 डेज में, 29 में। तो ये मेरे पूरे बकेट्स बने हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ अकाउंट्स, उनका मैच्योरिटी पैटर्न, कितना अमाउंट, और टोटल परसेंटेज कितना है। तो मुझे जो प्रोविजनिंग करनी है, मुझे जो आगे की प्लानिंग करनी है, ये प्लानिंग करना मेरे लिए बड़ा ही यहाँ पे आसान हो जाता है। इसको मैं एक एक क्लिक कर करके मल्टी ड्रिल डाउन भी इसको जो है मैं वो देख सकता हूँ, कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइज, मैच्योरिटी पैटर्न एंड इंटरेस्ट रेट वाइज का कॉम्बिनेशन करके देख सकता हूँ। इसके बाद में एक आता है आपका इन्वेस्टमेंट। हमने हमारे, जितना हमारे पास में फंड है उसका यूटिलाइजेशन कितना किया। नो डाउट सबसे ज्यादा लोन में करते हैं हम लोग, लोन देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में भी मैंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ये इसका पूरा पिक्चर मुझे जो है, ग्राफिकल पोजीशन, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, और इन्वेस्टमेंट में कितने मेरे क्या क्या मतलब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो भी मुझे यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से कुछ वेरियस सब्जेक्टिव हेड्स है, मैं टिपिकली देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सब लेते बैठा हूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा।
अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं। इसके बाद में लोन्स एंड अकाउंट्स का एनालिसिस, नॉर्मली बोर्ड मीटिंग होती है तो कौन से टॉप 50 एनपीए अकाउंट्स है, या फिर टॉप 50 एनपीए में भी मान लीजिए 10 लाख से ऊपर या 20 लाख से ऊपर या 25 लाख से ऊपर, मतलब अमाउंट आप खुद होके भी सेल्फ जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ऐसे टॉप 50 एनपीए अकाउंट या ऐसे टॉप अकाउंट देखने एनपीए के जो इस अमाउंट से ऊपर हो और जो या तो सबस्टैंडर्ड में हो या फिर सपोज डाउटफुल ए में हो, राइट। तो इनकी इमीडिएट रिपोर्टिंग जो है वो आपको यहाँ पे सिस्टम जो है वो बोर्ड मैनेजमेंट के लिए, बोर्ड मीटिंग के लिए जो है वो इमीडिएटली यहीं पे आपको जनरेट करके देगा। आप चाहो तो उसको ब्रांच का फिल्टर लगा सकते हो, अमाउंट का फिल्टर लगा सकते हो। So various way you can generate the your loan accounts and deposit accounts analysis, जिसमें कि top 50 NPA, top 50 overdue, top 50 performing asset, top 50 depositors, top 50 borrowers, कासा अकाउंट्स, हर तरीके का एनालिसिस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे मैंने अभी ये टॉप 50 एनपीए अकाउंट जनरेट किए तो पूरे अकाउंट के डिटेल्स स्क्रीन पर आ गए, राइट। इनमें भी मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, अगर आप यहाँ देखेंगे 4 कैटेगरी की है कि पहली बार एनपीए में आए हुए टॉप 50 कौन से हैं, जिनमें कुछ रिकवरी हुए ऐसे टॉप 50 कौन से हैं, जो क्लोज हो गए सेटल हो गए ऐसे टॉप 50 कौन से हैं, और ऐसे टॉप 50 जो कि प्रीवियस मंथ में भी एनपीए में थे और करंट मंथ में भी एनपीए में है। और फिल्टर लगा के लाइक ब्रांच का फिल्टर, अमाउंट का फिल्टर, रिस्क कैटेगरी का फिल्टर लगा के भी मैं ये सारा एनालिसिस कर सकता हूँ। उसी तरीके से टॉप 50 ओवरड्यू, टॉप 50 परफॉर्मिंग, टॉप 50 डिपॉजिटर, टॉप 50 बोरोवर, राइट, टाइप ऑफ कासा अकाउंट, लोन अकाउंट्स, एडवांसेस, सभी का एनालिसिस जो है वो यहाँ पे दिया है, ताकि बोर्ड मीटिंग के लिए ये प्रिपरेशन जो है वो हमको करना ना पड़े, ये सारा कुछ हमको करके मिले सिस्टम की तरफ से। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल रेशियो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमको हमारे बैंक की ओवरऑल जो हेल्थ बोल सकते हैं वो समझ में आती है डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज के थ्रू। फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो, एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो, असेट क्वालिटी रेशियो हो, लिक्विडिटी रेशियो हो, प्रोडक्टिविटी रेशियो हो, एनालिसिस ऑफ लाइबिलिटी या एनालिसिस ऑफ एसेट साइड, ये सभी रेशियो जो है वो स्टैंडर्ड रेशियो आप ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जैसा चाहे वैसा इसको एनालिसिस कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसके मिनिमम रेंज, जो रेंज आइडियल रेंज है, अगर वो रेंज के नीचे है तो मिनिमम साइड है, मतलब निगेटिव साइड अगर रेशियो है तो आपको वो भी कलर से इंडिकेट करता है। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी पर ब्रांच की प्रोडक्टिविटी और पर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्या बैठ रही है, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, आप जैसा चाहे उसको वैसा एनालाइज कर सकते हो। पर ब्रांच आपका टोटल डिपॉजिट कितना है, पर ब्रांच लोन कितना है, पर ब्रांच मेरा वर्किंग फंड कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सिमिलरली पर एम्प्लॉय वाइज भी टोटल डिपॉजिट, वर्किंग फंड, इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ अकाउंट, नेट प्रॉफिट, ये भी सब आपको पर एम्प्लॉय, पर ब्रांच दोनों ही लेवल से आपकी प्रोडक्टिविटी ले सकती। ईयरली लोगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेगा, क्वार्टरली और मंथली लेंगे तो विद इन फाइनेंशियल ईयर्स भी आपको ये सारे डिफरेंट जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो सभी आपको यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड मिलेंगे। इसके लिए डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डेटा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, सीबीएस से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। सो ऑटो जनरेटेड, आपको सिर्फ बस ऑप्शन लेना है एंड सिलेक्ट करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और है, दैट इज आपका की परफॉर्मिंग इंडिकेटर। नॉर्मली हम हर ब्रांच को साल के स्टार्टिंग में ही एक ये कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग में ही हम लोग कुछ ना कुछ टारगेट दे देते हैं। टारगेट हो सकता है उसके मतलब नंबर ऑफ कासा अकाउंट के लिए हो सकता है, रिकवरी के लिए हो सकता है, लोन्स के लिए हो सकता है, राइट। तो हर चीज का, टर्म डिपॉजिट का टारगेट हो सकता है। तो हर कंपोनेंट का और ब्रांच वाइज दिया हुआ टारगेट, ये आप जो है वो पूरी तरीके से सिस्टम पे रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ़िगरेबल है, यानी कि कंपोनेंट्स के टारगेट क्या रखना है ब्रांच वाइज, ये आप साल के स्टार्टिंग में एक बार सेट कर देंगे। एंड जो भी एनुअल टारगेट आपने सेट किया होगा अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब उस एनुअल टारगेट के अकॉर्डिंग अचीवमेंट टारगेट वर्सेस अचीवमेंट का आपको यहाँ पे रियल टाइम पोजीशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो रिपोर्टिंग का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका जो मेन सेंट्रलाइज एमआईएस, इंटीग्रेटेड एमआईएस जो हम दे रहे हैं उसके साथ में आपको
मतलब बंडल्ड आपको सॉफ्टवेयर में ही मिलेगा और इंटीग्रेटेड मिलेगा। तो इसके लिए हमको ना लाइसेंस की परचेस की जरूरत है और ना ही बहुत किसी टेक्निकलिटी की इसके लिए हमको जरूरत है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन जो कोर एप्लीकेशन सीबीएस पे आ जाते हैं कि सीबीएस का भी लुक्स एंड फील कैसा है। सो दिस इज माय सीबीएस लुक एंड फील। इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए क्रेडिट डेबिट अकाउंट ओपनिंग वाउचर पोस्टिंग या फिर पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट्स या फिर लाइक डिसबर्समेंट, ये सारी चीजें तो नॉर्मली हर सीबीएस में होता है, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि दैट इज वेरी टिपिकल। और डिटेल डेमोस्ट्रेशन हम लोग वैसे भी 1-to-1 और उसके लिए काफी टाइम भी लगना है। मैं सिर्फ एक आपको लुक्स एंड फील और कुछ मेन फीचर हाईलाइट करने के हिसाब से जस्ट सीबीएस दिखा रहा हूँ। जैसे लॉग इन करेंगे आपको सेंट्रलाइज अलर्ट मैनेजमेंट और ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो अगर आप देखेंगे, मैं रिटेल में लॉग इन हुआ है तो यहाँ पे पूरा सिस्टमैटिकली अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, योर कंप्लीट CKYC प्रोसेस, योर रेगुलर ट्रांजैक्शन प्रोसेस, जिसमें कि 1 to many एंड योर रेगुलर आपके जो भी रिसिप्ट पेमेंट्स है, कैश ट्रांजैक्शन है, रेगुलर योर डे एंड प्रोसेस, ईयर एंड प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिपोर्टिंग सेक्शन। रिपोर्टिंग सेक्शन में जाते हैं तो यू विल गेट ऑल द रिपोर्ट्स, मोर देन 500+ रिपोर्ट्स हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट आपको जो दिखाना था वो मुझे स्टैट्यूटरी दिखाना था आरबीआई से, तो आप यहाँ पे देखेंगे ओएसएस एएलएम एएमएल ऑल ओएसएस स्टेटमेंट 1 to 5 ऑल ओएसएस स्टेटमेंट, राइट। देन आपके एएलएम AML रिपोर्ट जिसमें कि CTR STR NTR एवरीथिंग यू विल गेट जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। आरबीआई की जो फोर्टनाइटली और मंथली रिपोर्ट्स है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे डेली लिक्विडिटी, लाइक देन आपका लिक्विडिटी रजिस्टर, NDTL, CRR रजिस्टर, SLR रजिस्टर, ये कुछ पूरा सब कुछ सिस्टम जनरेटेड है। मेनू में जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं दैट ऑल यू विल गेट सिस्टम जनरेटेड। आपका आरबीआई के जो ग्रुप रिपोर्ट्स है हाफ ईयरली ईयरली के, जिसमें DICGC एंड ऑडिट में जब जाते हैं तो 1 to 10 आपके स्टेटमेंट्स, ऑल इंडेंट रिपोर्ट्स, इंडेंट में आप जाएंगे तो सभी इंडेंट्स रिपोर्ट्स यू विल गेट सिस्टम जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। सो इन शॉर्ट अगर मैं स्टैट्यूटरी की बात करूं, कंप्लायंस और स्टैट्यूटरी की बात करूं, तो कंप्लीट यू विल गेट फ्रॉम द सिस्टम जनरेटेड। आपको पूरी तरीके से सिस्टम जनरेटेड मिलेगा। इसके बाद में TDS में अगर हम चाहते हैं तो आपका 26Q ये भी आपको सिस्टम जनरेटेड मिलेगा। और जीएसटी के केस में वी हैव आई मीन प्राइमरी जीएसटी रिपोर्टिंग जो कि सिस्टम से भी जनरेट होगी, और स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव जीएसटी कंप्लायंस पूरी तरीके से आपका जीएसटी हैंडल करने के लिए एक्सक्लूसिव वी हैव द जीएसटी मॉड्यूल आल्सो, जिसमें कि आपका पूरा रिटर्न फाइलिंग तक का पूरा मैनेज होगा। तो डे टू डे लगने वाले सारे रिपोर्ट्स डे 1 से आपका फिर रेगुलर डेली जनरेट होने वाली रिपोर्ट्स, डे बुक, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट, लोन रिलेटेड, डिपॉजिट रिपोर्ट, योर NPA रिपोर्ट, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम द सिस्टम। आपको रिपोर्टिंग के लिए, और हर रिपोर्ट्स आपके PDF में, एक्सेल में, मल्टीपल फॉर्मेट्स में जो है वो आपके एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो आपको टोटल आई मीन एंड टू एंड आपकी जो रेगुलर रिटेल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी सिस्टम से कैप्चर हो कवर अप होती है। और अगर आपको लगता है कि लोन एप्लीकेशन से पहले आपका ओरिजिनेशन सिस्टम, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन या पूरा असेसमेंट प्रोसेस, उसकी पूरी रिस्क एनालिसिस, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, ये सब कुछ भी सिस्टम से करके मिले, तो उसके लिए सेपरेट पूरा लोन LOS सिस्टम भी हम लोग देते हैं जो कि बाद में इंटीग्रेट आपके CBS से होगा। मतलब लोन केस जो यहाँ से अप्रूव होगी LOS से, वो आपके CBS में अकाउंट ओपनिंग में डायरेक्ट जाएगी और वहां से डिसबर्समेंट और आगे की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। और बैक ऑफिस हमने जितना डिस्कस किया, जिसमें GST भी है, फिक्स असेट भी है, प्रोक्योरमेंट भी है, वो सारे के सारे मॉड्यूल्स भी हमारे बैक ऑफिस मॉड्यूल में इंटीग्रेटेड है। तो अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं कि हम उसको 1 by 1 डिस्कस करें, बट एवरी मॉड्यूल यू हैव। और फिर से लास्ट में एक ही रिपीट करता हूं कि एंड टू एंड सोल्यूशन, आपको कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन इन वन अम्ब्रेला, एक ही वेंडर के थ्रू, एज अ वेंडर, सिंगल वेंडर आपको हम प्रोवाइड जो है, और कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। सो कंप्लीट वन अम्ब्रेला के अंडर में हम पूरा सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। मुझे लगता है मैंने ओवरव्यू एक पूरा सॉल्यूशन का दे दिया है। थैंक यू नितिन सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन पेशेंसली, सभी ने मुझे सुना। और जैसा डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स है, आप किसी को भी कांटेक्ट करके, आई मीन जो नियरेस्ट है आपके
एग्जीक्यूटिव, उनको कांटेक्ट करके एंड वी कैन हैव अ डिटेल्ड डेमो आल्सो. So once again, thank you very much for giving the time.